Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 9 of computer. Chapter number 7, the internet and email. Page number 126. Okay class, firstly हमारे पास practice zone है. True false है. The internet has turned the world into a global village. True. There are two kinds of IP address, permanent and temporary. True, ये हमने reading में पढ़ा. One can not watch movies online using the internet. False. Using the internet, we can communicate with anyone in any part of the world. True, हम किसी से भी communicate कर सकते हैं. ठीक. Next है हमारे पास what an email is. Email stand for electronic mail. ये इसकी abbreviation है. It is a method of exchanging messages between people using electronic devices. ठीक है, इसकी मदद से हम messages exchange कर सकते हैं अगर हम electronic devices यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. It is an instant and convenient, and a single email can be sent to a number of person at any given point of time. एक मेल को हम मल्टीपल पर्सनस को सेंड कर सकते हैं. Another advantage of email is that you can attach photos, videos और important data and documents along with your mail. उसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम अपनी मेल के साथ फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, दीज फाइल्स आर कॉल्ड अटैचमेंट्स. In the earlier grades, you learned what an email address is and how to open an email account. Let us now learn how to use an email account to send and read emails. Firstly, an email account. To use an email account, one must log in with the username and password one has created. उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा. ठीक. और सबसे पहले है इनबॉक्स. इनबॉक्स क्या होता है उससे पहले आपने ये डिड यू नो लर्न करना है. The first commercial modem was manufactured and sold in 1962 as the Bell 103 by AT&T. Now, inbox. An inbox is an electronic folder in an email account where mails or messages are received and stored. एक इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर है जिसमें क्या होते हैं, मेल्स और मैसेजेस रिसीव होते हैं और स्टोर होते हैं. The inbox shows information about all emails we have received. Each message header displays the sender name, subject line, initial words of the message and the time and date what the mail is when the mail is received. उसके क्या होता है, उसके हेडर में सेंडर का नेम होता है, सब्जेक्ट की लाइन होती है, इनिशियल वर्ड्स होते हैं मैसेज के और टाइम एंड डेट होती है कि कब हमें वो मैसेज रिसीव हुआ. To read an email, click on the mail and the mail will open either in the same window or in the new window. कह रहे हैं कि अब मेल को किस तरह से रीड किया जाएगा. जिस मेल को रीड करना है उस पर क्लिक करें तो मेल आपकी या फिर उसी विंडो पे ओपन हो जाएगी या न्यू पेज ओपन हो जाएगा उसके लिए. ठीक. नेक्स्ट क्या है, कंपोज मेल, यानी कि मेल को हमने क्रिएट किस तरह से करना है. अभी तो इसको रीड करने का उन्होंने मेथड बताया, अब उसको कंपोज करने का बता रहे हैं. क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन टू राइट एन ईमेल. ये कंपोज का ऑप्शन है. ठीक है, ये जीमेल में इस तरह से होता है और बाकियों में कंपोज के अलावा दूसरे वर्ड्स होते हैं, दूसरे ऑप्शंस होते हैं. इन केसेस वेयर द कंपोज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, लुक्स फॉर सिमिलर ऑप्शंस. अगर कंपोज का ऑप्शन नहीं है तो उसके अलावा और ऑप्शंस होंगे. दिस विल ओपन अ न्यू विंडो विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. उसके फॉलोइंग न्यू विंडो ओपन होगी और उसके ये कंपोनेंट्स होंगे विच इज़ कॉमन टू ऑल ईमेल प्रोवाइडर. टू, जिसमें हेयर टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम यू वांट टू सेंड द ईमेल. टू में हम उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको हमने मेल सेंड करनी है. CC stands for carbon copy. Here you can specify the email address of the persons to whom you want to send a copy of the same email. वहाँ पर यहाँ पर CC में हम वो वाले ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं जिनको हमने सेम मेल सेंड करनी है. ठीक है. The email addresses mentioned in this field can be seen
by the all recipients of the mail। वो ईमेल एड्रेस तमाम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सीसी में मेंशन होंगे, जिनको हम कॉपी भेज रहे हैं उसी मेल की। नेक्स्ट क्या है, बीसीसी। बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड carbon copy, like CC. This is also used to send copies of your mail to the several people, but the difference is that the email address mentioned in BCC cannot be seen any other recipients of the mail who are in 2 and CC। अब BCC में क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि एक मेल हम मल्टीपल पर्सन्स को भेज सकते हैं, और उसके लिए क्या है कि लेकिन ईमेल एड्रेस जो होगा वो हाइड होगा, कैन नॉट बी सीन एनी अदर रिसिप्ट्स। उसके बाकी रिसिप्ट्स नहीं देख सकते आपके, जिनको आप वही कॉपी भेज रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या, सब्जेक्ट। दिस इज पोज टू बी द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेल। इट इज़ वेरी शॉर्ट, अमाउंटिंग to 3 to 5 words। It gives the recipients an idea that what the message contains। सब्जेक्ट में क्या होगा कि हम मेंशन करेंगे कि हम मेल किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है मैसेज। यू कैन टाइप द मैसेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल लेटर बिगिनिंग विद अ ग्रीटिंग, one or more paragraph in the body of mail and the other name at the bottom। Several formatting features are also available and you can use these if you wish to। However, it is advisable not to decorate a formal email। After you finishing composing the email, click on the send button and the mail will be sent to its recipients। मैसेज में क्या करेंगे, जितना हम जो हमने मैसेज टाइप करना है, जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम मेल लिख रहे हैं, उसमें ये सब टाइप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है अटैचिंग अ फाइल। इन मैनी इंस्टेंसेस देयर आर फाइल्स, फोटोज, वीडियोज और इमेजेस दैट need to be sent along with the message। In such cases, you can use the facility of attaching the required file, folder, videos or images along with the message। मेल के साथ हम फोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस कुछ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी अटैच कर सकते हैं अगर वो रिक्वायर्ड है। टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल आफ्टर यू हैव कंपोज और राइट द मैसेज, फॉलो द गिवन स्टेप्स। उसको कंपोज हमने कर लिया, उसको लिख लिया हमने, तो उसके बाद हमने फ़ाइल अटैच करनी है, तो उसके लिए यह प्रोसीजर है। क्लिक ऑन द अटैच, ये उसका आइकन है, a file icon on the toolbar at the bottom of the compose window। The open dialog box will appear। Browse through the file and select the file you want to send। ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ से हमने जो फाइल सेलेक्ट करनी है, जो हमने सेंड करनी है, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सर्च करके सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ओपन बटन और प्रेस एंटर। द फाइल गेट अटैच्ड to your mail। Now click on the send button। Next है replying and forwarding emails। उसको reply किस तरह से करना है और forward किस तरह से करना है। When some emails do not need you to send a reply, there are many that require a response। An email can be responded to easily। The reply option is present by default when you open an mail। जब हमने कोई भी मेल ओपन करते हैं तो वहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अगर हम रिप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, ठीक। टू रिप्लाई एन ईमेल, क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, टाइप इन द रिस्पॉन्स एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। उसके लिए हमें उसका ईमेल एड्रेस दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और देन सेंड पे क्लिक कर देंगे। समटाइम्स यू मे हैव टू फॉरवर्ड एन mail to the friend of yours। In this case, click on the forward button, which is next to the reply button। Type in the email address in the to box and click on send। नेक्स्ट एक्टिविटी जोन में यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि एक मेल कंपोज करें। यहाँ पर आपने इसको कंपोज करके देख लेना। ये प्रोसीजर सारा हमने यहाँ पर रीड आउट किया।
नाउ क्लास पेज 136 पे रिकैप जोन है, यहाँ से आप फर्स्ट 7 रिकैप जोन लर्न करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आपकी रीडिंग में से लिए गए हैं। रीडिंग में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। द इंटरनेट इज़ अ वाइड नेटवर्क where millions of computers are interconnected with each other. The use of internet has made computer and the smartphones the most effective communication tool. Various components that are part of the internet network are workstation, hubs, switch router, modems, and the other communication channels like optical fibers, wires, and Wi-Fi devices. An IP address is of two kinds, permanent and temporary. Your IP address will be the permanent one if you connect to the internet from a local area network. An IP address is temporary if you connect to the internet through an ISP, which is provided for the duration of your dial-in session. Every computer needs a protocol stack to the communicate on the internet. It is referred to as the TCP/IP protocol stack. ओके क्लास, आपने जहाँ तक हमने रीडिंग की है वो रीडिंग करेंगे, वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को खुद हाईलाइट करेंगे, उधर से लर्न करेंगे, और यहाँ से फर्स्ट 7 रिकैप जोन भी आप लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।